عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی جو امانتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کو لگاتار مستحقین تک پہنچانے کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور جن جن بستیوں میں ہماری ٹیم پہنچ کر کے کام کر رہی ہے، پہاڑی غریب مستحق بستیوں میں، وہاں سے تصاویر وغیرہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم نے آج مارننگ میں بھی آپ کو دکھایا، اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور تصاویر کا آنے کا بھی، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے لہٰذا جو ہے ساری تصاویر وہاں کی ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ کچھ دن جاری رہے گا ناظرین گرامی، اس لیے کہ تقاضے آ رہے ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک اس میں شرکت نہیں کی ہے، حصہ نہیں لیا ہے، وہ ضرور شرکت کریں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس میں اگر آپ تفصیلات پوچھیں گے تو آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی، پھر اس پر جو آپ کا ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی بستیوں میں ہوتا ہے ناظرین گرامی، اس کی تفصیلات تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایک تصاویر جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ سینکڑوں فیملیز میں الحمدللہ ہم لوگوں نے پہنچا ہے۔ یہ دوسری بڑی بستی تھی جہاں پر ہم نے جو ہے بڑے پیمانے پر راشن پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور بھی بستیاں ہیں وہاں بھی ابھی کام جاری ہے، وہاں سے جب بھی تصاویر وغیرہ آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ابھی بھارت میں سچویشن مسلمانوں کے خلاف اس تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے کہ اب نوجوان طبقہ خود جو ہے اب عمل کا رد عمل دینا شروع کر چکا ہے۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز کبھی کبھی آتی ہیں، یہ ویڈیو نے ایک اور ویڈیو دکھایا ہے کہ مسجد کے سامنے ایک مرتبہ پھر متعصب ہندوتوا طبقہ پہنچ کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بائک ریلی کے ذریعے سے دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر ان کے سامنے آ کھڑے ہو گئے مسلمان لڑکے، اور پھر جو ہے ان کی جو سازشیں تھی مسلم محلوں میں پہنچ کر کے تباہ و برباد کرنا، مسلمانوں کی پراپرٹیز کو، مسجد وغیرہ کو نقصان پہنچانا، وہ لوگ جیسے ہی ڈٹ کر کے مسلم نوجوان کھڑے ہوئے، بائک اور جو کچھ بھی وہاں تھی سب چھوڑ کر کے، جھنڈے ونڈے چھوڑ کر کے پچھلے قدم بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ بعض متعصب ذہنیت کے لوگ جو ہے اس کو الگ طرح سے دیا جا رہا ہے، لیکن آپ مسلم محلوں میں گھسیں گے اور مساجد کے سامنے تماشا کھڑا کریں گے اور چھیڑخانی کریں گے، ڈی جے کے ذریعے سے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کریں گے، مختلف قسم کی گالیاں بکنا شروع کریں گے، تو بھائی کب تک یہ تماشا دیکھا جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں جو آپ کو مختلف اس وقت سوشل میڈیا میں ملے گی، جس میں گاڑیاں وغیرہ چھوڑ کر کے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو آج آئی، اور وہ ہے کہ کانپور کی ٹریفک ہوم گارڈ نے ایک سائیکل سوار کو بے دردی سے بہت بری طرح سے پیٹا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ اگر آپ وردی میں ہیں تو کس طرح سے دادا گیری اور گنڈا گردی کر سکتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جو ہے قانون کا اپنا ایک مزاج ہے، اگر آپ کو کسی شخص سے غلطی ہوئی یا ٹریفک اصول توڑتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اس کو فائن دیا جائے یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیچ بازار میں اس کو اس طرح سے مارنا اور اپنی وردی کا دھاگ دکھانا اور گنڈا گردی کرنا ہے، پولیس کو کہاں تک زیب دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو اس ویڈیو پر اس وقت الگ الگ تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور کسی نے لکھا کہ یہ یو پی میں جو گنڈا راج ہے اس کی منہ بولتی تصویر ہے، یہ کہتے ہوئے بھی اس ویڈیو پر تبصرے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی،
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर है नासिर और जुनैद के कत्ल के मामले में दो मजीद फरार कातिल दहशतगर्दों को, जो हिंदुत्व दहशतगर्द हैं, उनको पुलिस ने देहरादून के पहाड़ से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, नासिर और जुनैद नामी नौजवान का बोलेरो समेत अगवा करके हरियाणा में भिवानी जिले के लोहारू थाना हल्के में गाड़ी समेत जलाकर कत्ल कर देने के मामले में तकरीबन 2 माह से भाग रहे मफरूर दहशतगर्द भिवानी के बाशिंदे नरेंद्र कुमार उर्फ मोनू राणा और मोनू उर्फ गोगी को पुलिस ने देहरादून की पहाड़ियों से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। इस मामले के कुछ नामजद मुलजिमीन अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस हुनूस जारी रखे हुए है। आईजी रेंज गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि 16 फरवरी को घाटमे का गांव बाशिंदा इस्माइल मयू ने जुनैद और नासिर के अगवा होने की रिपोर्ट थाना गोपालगढ़ में दर्ज कराई थी। बदमाश दोनों नौजवानों को बोलेरो समेत अगवा कर ले गए थे, जिन्होंने हरियाणा में भिवानी जिले के थाना लोहारू इलाके में बोलेरो समेत दोनों को जलाकर कत्ल कर दिया था। इसी सिलसिले में पूरा मामला पूरे भारत में किस तरह से फैला, उस पर क्या क्या तबसरे हुए आप जानते हैं। इस मामले में 2 मजीद मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद ये खबर अचानक सुर्खियों में आई। नाज़रीन गिरामी, यमनी बहरान को हल करने की जानिब सऊदी अरब पूरी तरह से संजीदा हो चुका है, कहा जा सकता है, इसलिए कि कैदियों के तबादले का एक अमल शुरू हो चुका है। आज जुमा के रोज शुरू होने वाले 3 रोज़ा ऑपरेशन की दागबेल यमनी हुकूमत और हुसियों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तय पाने वाले माहदे के जरिए रखी गई थी। कैदियों से मुतालिक मुज़ाकरात में हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले वफ्द के तर्जुमान और इंसानी हुकूक वजारत के सेक्रेटरी माजिद फ़ज़ाइल ने एक ट्विटर पैगाम में तस्दीक की है कि कैदियों की रिहाई का अमल जुमा के रोज से शुरू हुआ और 3 दिन अब ये जारी रहेगा। नाज़रीन, यमनी हुकूमत के 70 कैदियों को 2 अलग अलग परवाज़ों के जरिए अदन पहुँचाया जाएगा। हर परवाज़ 35 कैदियों को लेकर जाएगी। रिहाई पाने वाले यमनी हुकूमत के कैदियों में साबिक वज़ीर दिफा जनरल महमूद अस्सबही और साबिक सदर मंसूर हादी के भाई जनरल नासिर मंसूर हादी भी नुमाया नाम है। इन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि अदन से तना के लिए कैदियों को ले जाने वाली परवाज़ पे ऐन उसी वक्त रवाना होगी जब सना से अदन के लिए परवाज़ उड़ान भरेगी। वह नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो यमन में सूरत हाल बनी हुई है, ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से ये मुआहदे के बाद जो मुफाहमत का काम जारी है उसकी सराहना होनी चाहिए। जो भी हो, खाना जंगी बंद हो, एक दूसरे के कत्ल की जो है ये सिलसिला बंद हो, यही उम्मत मुस्लिमा भी चाहती है। नाज़रीन गिरामी, चीन क्या ताइवान के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह से मंसूबा तैयार कर लिया है? आप इसको हाँ में भी जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि अमेरिका से कशीदगी के दरमियान चीन ने ताइवान मामले पर फौजी भर्ती के लिए नए उसूल नाफिज कर दिए हैं। फौजी माहिरीन को आला सलाहियत वाले जवान तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है और चीन का मंसूबा है कि ताइवान से जंग के दरमियान उन्हें फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा। माहिरीन कह रहे हैं कि चीन का इस तरह का हुक्म ताइवान के खिलाफ जंग की तैयारी की तरफ इशारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई भर्तियों के दौरान खास तौर पर जंग के जदीद तौर तरीके सिखाए जाएंगे। स्टेट काउंसिल और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC ने इस सिलसिले में कुछ उसूल जारी किए। CMC सरबराह खुद चीनी सदर शी जिनपिंग हैं। फौजी भर्ती के नए रूल बुक में 11 हिस्सों में 74 आर्टिकल्स दिए गए। इसमें आला सलाहियत वाले फौजियों की भर्ती के अमल और फौजी भर्ती के लिए एक सिस्टम तैयार करने को कहा गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये नए उसूल को लाए जाने और मुख्तलिफ किस्म की जो जदीद रूल बुक सामने लाए गए हैं, इससे यही बावर कराया जाने की कोशिश हो रही है, बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक के अंग्रेज़ी अखबारात में, कि जो है ताइवान पर हमला करने के लिए चीन जंग का मंसूबा तैयार कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। अब देखिए कि चीन से ताल्लुक़ रखने वाली खबर, जिसमें एक शिकायती बच्चा अपनी माँ की शिकायत करने के लिए दादी के घर चल पड़ा। दादी का घर था तो करीब, लेकिन रास्ता भूल गया, तो फिर वो 130 किलोमीटर तक दर बदर की ठोकरें खाता रहा। बाद में पुलिस के हाथों लगा तो फिर उसको वालिदैन के हवाले किया गया। दरअसल अपने वालिदैन के बारे में दीगर अकारीब से अपनी मासूमाना शिकायत करते रहते हैं बच्चे, मगर चीन के 11 साल बच्चे का अपनी माँ के खिलाफ दादी से शिकायत के लिए तवील सफ़र एक हैरान कुन वाक़े के तौर पर सुर्खियाँ बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 साल बच्चा अपनी मां के खिलाफ शिकायत लेकर अपने दादी के घर की तरफ साइकिल पर रवाना हुआ। अगरचे उसकी दादी का घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर बच्चे को उसके घर का पता नहीं था। बच्चा दादी के घर नहीं पहुंच सका, मगर पुलिस ने उसे उसके वालिदैन से मिला दिया।
बच्चे ने पुलिस को बताया कि वो लाइल्मी की वजह से तवील फासला तय करता रहा, यहाँ तक कि दादी के घर तक पहुंचने में उसे 22 घंटे लगे और इस दौरान उसने 130 किलोमीटर का फासला अपने साइकिल पर तय किया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक लड़का 2 अप्रैल की शाम को हाईवे पर बहुत थका हुआ पाया गया था और उसने सफर शुरू करने से पहले रोटी और पानी अपने घर से भी लाया था। लड़के ने अपने सफर के लिए सड़क के इशारों पर इंतजार किया, लेकिन उसने पुलिस के सामने इतराफ किया कि उसने कई गलत मोड़ लिए, जिसकी वजह से उस सफर को अपनी मंजिल तक पहुंचने की तवक्को से दुगना वक्त लगा। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बास चीज़ें खबरें बना लेती हैं और वो दिलचस्प हो जाती हैं, उसका अंदाज़ा लगाएं। ऐसी ही खबर नाज़रीन गिरामी मिस्र से भी आई, जिसकी यहाँ की एक वीडियो ने कोहराम मचाया। दरअसल बारिश का पानी रमसेस दुवम के मुजस्समे तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में मिस्र में जब इस मुख्तलिफ तबसरे आए तो उस पर जो है अलग अलग तरह के हंगामे हुए। मिस्र में उस वक्त कोहराम मचा जब बारिश का पानी ग्रैंड म्यूजियम के अंदर मौजूद रमसेस दुवम के मुजस्समे तक पहुंच गया। बारिश और मुजस्समे की वीडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। सारे मिस्र से लोगों का जबरदस्त रद्द-अमल देखने में आया। ओह सफेद दिन, उन्होंने ये मुझ में छुपा दिया, क्या सब कुछ ये है? इन अल्फाज के साथ मिस्रियों ने अपनी हैरत का इजहार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो के बड़े पैमाने पर फैलने से लोगों में बड़ी उलझन पैदा हो गई। इसके बाद हुक्काम ने मुदाखलत करके सूरत हाल की वजाहत की। हंगामा आराई की वजह से ग्रैंड मिस्री म्यूजियम उसके आसपास के इलाके के निगरान मेजर जनरल आतिफ मिफ्ता ने तस्दीक की कि बादशाह रमसेस दुवम के मुजस्समे पर बारिश का गिरना मामूल की बात है और ऐसा पहली मरतबा नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि म्यूजियम के डिज़ाइन के बायस बारिश से मुजस्समे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि म्यूजियम के असल डिज़ाइन में इलाका इस तरह खुला है जिससे मुजस्समा छतरी के नीचे हो। वह गए नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि मिस्र में जो है बहुत ही पुरानी चीज़ें और मिस्र एक तारीख़ी मुल्क और तारीख़ी शहर होने के नाते यहाँ पर जो है फ़िरौन और उसके दौर से वाबस्ता कई सारे ऐसे याददाश्त हैं जिसको यहाँ की म्यूज़ियम में रखा गया है। इसी के चलते इस तरह की जो है चीज़ें लोगों के सामने आई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।